Good morning, children. Today we start with the second lesson, part 2, Chandrama par Khargosh. Chandrama par Khargosh. Now, what is the meaning of Khargosh here? Khargosh means rabbit. Khargosh means what? Rabbit. And Chandrama means what? Chandrama means moon. The rabbit on the moon. The rabbit on the moon. The name of this lesson is Chandrama par Khargosh. The rabbit on the moon. In last class we have completed पद्य एक. पद्य एक हमने कविता पूर्ण की है पिछली कक्षा में. आज हम पाठ 2 की शुरुआत करेंगे. तो चंद्रमा पर खरगोश क्या है इस पाठ में? इस पाठ में पशु और भगवान की कहानी दी गई है. इस पाठ में पशु और भगवान की कहानी दी गई है. एक बार क्या हुआ, पशुओं को अभिमान हो गया. कि क्या हुआ पशुओं को अभिमान? जंगल में रहते थे पशु, उनको अभिमान हो गया कि पशुओं को ऐसे लगता था कि हम सबसे ज्यादा उपयोगी है और हम सबसे ज्यादा भगवान के निकट है. सभी पशुओं को ऐसे ही लगता था कि हम सबसे ज्यादा उपयोगी है और हम सबसे ज्यादा भगवान के निकट है. तो अब यह कौन निश्चय करेगा कि कौन सा पशु सबसे भगवान से सबसे ज्यादा निकट है और सबसे ज्यादा उपयोगी भी है? कौन निश्चय करेगा? क्योंकि सब पशु अपनी अपनी जगह उपयोगी है. जैसे कि हम देखेंगे कि हाथी सवारी के लिए उपयोगी है. गधा बोझा ढोने के लिए उपयोगी है. ऊंट रेगिस्तान में उपयोगी है. और हमें गाय और बकरी दूध देती है. तो वैसे ही सब पशु अपनी अपनी जगह पर उपयोगी है. तो अब यह कौन निश्चय करेगा कि कौन सा पशु सबसे ज्यादा उपयोगी है और सबसे ज्यादा भगवान से निकट है? तो भगवान ही खुद ने निश्चय किया कि भगवान ने ही पशुओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया. क्योंकि पशुओं को अभिमान हो गया था कि मैं सबसे ज्यादा उपयोगी हूँ, मैं सबसे ज्यादा उपयोगी. सभी पशुओं को ऐसे ही लगता था. इसीलिए भगवान ने क्या किया? भगवान ने पशुओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया. अब भगवान पशुओं की परीक्षा कैसे लेते हैं यह हम देखेंगे इस पाठ के द्वारा. ओके, सो if you have textbook, children, take out your textbook and pencil. And if you don't have textbook, take out your rough book and pencil. Okay, children, so take out your textbook and pencil. If you have textbook, children, keep your finger there. Chandrama par Khargosh. See, if I am reading now, you see in your textbook. And try to read with me. Okay, and I'll explain one by one words and lines. Okay, so take out your textbook, keep your finger there, and listen properly if you don't have textbook. Okay, Chandrama par Khargosh, the rabbit on the moon. Very interesting story. So listen it properly, children. The rabbit on the moon. Khargosh means what? Rabbit. If you don't know, you write there Khargosh. See what I am writing meaning on the board. No, you just underline the textbook and up you write the meaning in English. Okay. Khargosh. Khargosh means rabbit. Khargosh means what, children? Rabbit. And Chandrama. Chandrama means what? Moon. Chandrama means what? Moon. The rabbit on the moon. एक बार सभी पशुओं को अभिमान हुआ. एक बार means once upon a time. Pashu. What is the meaning of Pashu? Pashu means animal. Pashu means what? Animal. Pashu means animals.
एक बार, once upon a time, all animals they started feeling proudness on themselves only. Abhiman means what? Abhiman, घमंड, pride. Okay, abhiman means what? घमंड, pride, proudness. एक बार सभी पशुओं को अभिमान हुआ. Once all animals they started feeling proudness on themselves only. Okay, हर एक को लगता कि means everyone was thinking that वही बहुत उपयोगी है. What is the meaning of उपयोगी? उपयोगी means useful. You must be knowing उपयोगी means what? Useful. और ईश्वर के ज्यादा निकट है. सब हर एक को लगता था कि वही बहुत उपयोगी है और ईश्वर के ज्यादा निकट है. निकट मीन्स व्हाट? नियर. निकट मीन्स व्हाट? नियर. एंड ज्यादा मीन्स व्हाट? मोर. निकट मीन्स नियर. हर एक को लगता कि वही उपयोगी है और ईश्वर के ज्यादा निकट है. मीन्स एवरीवन वाज फीलिंग लाइक दैट दे आर ओनली यूजफुल एंड दे आर नियर टू गॉड. ईश्वर के ज्यादा निकट है. ईश्वर के ज्यादा निकट है मीन्स दे आर नियर टू गॉड. ईश्वर मीन्स व्हाट? गॉड. परंतु कौन ज्यादा उपयोगी है यह कैसे निश्चित हो? परंतु कौन ज्यादा उपयोगी है means who is more useful? ज्यादा उपयोगी है. Who is more? परंतु means what? परंतु means what? परंतु means but. परंतु means what? But who is more useful? यह कैसे निश्चित हो? निश्चित means what? To decide. निश्चित. To decide. Or decide. Who will decide that who is very useful? Who will decide? परंतु कौन ज्यादा उपयोगी है यह कैसे निश्चित हो? हाथी सवारी के लिए उपयोगी है. हाथी सवारी के लिए उपयोगी है. हाथी means what? Elephant. सवारी. What is the meaning of सवारी? सवारी means riding. सवारी means what, children? Riding. सवारी. सवारी मीन्स राइडिंग. हाथी सवारी के लिए उपयोगी है मीन्स एलिफेंट इज यूजफुल फॉर राइडिंग. ऊंट रेगिस्तान में उपयोगी है. ऊंट मीन्स व्हाट? कैमल. एंड रेगिस्तान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगिस्तान? यस, रेगिस्तान मीन्स व्हाट? डेजर्ट. रेगिस्तान मीन्स व्हाट? डेजर्ट. ऊंट रेगिस्तान में उपयोगी है. कुत्ता रखवाली करने में उपयोगी है. रखवाली मीन्स व्हाट? टू गार्ड. रखवाली करना, टू गार्ड. रखवाली. गार्डिंग. See here, 3 sentences are there. हाथी सवारी के लिए उपयोगी है means elephant is useful for riding. सवारी means what? Riding. ऊंट रेगिस्तान में उपयोगी है. रेगिस्तान means what? Desert. Camel is useful in desert. You know that camel is useful in desert. कुत्ता रखवाली करने में उपयोगी है. कुत्ता means what? Dog. रखवाली करने में उपयोगी है means he is useful in guarding the house or anything. Okay, he is useful for. वह कुत्ता किसके लिए उपयोगी है? रखवाली करने के लिए. रखवाली के काम में वह उपयोगी है. गाय, भैंस और बकरी दूध देती है. See now here, गाय, भैंस और बकरी. गाय means what? Cow. भैंस means what? Buffalo. और बकरी means what, children? Goat. बकरी दूध देती है. They are giving the milk. Who? Cow, buffalo and
goat, they are giving the milk. गाय भैंस और बकरी हमें दूध देती है. गधा बोझा ढोता है. गधा बोझा ढोता है. बोझा means what, children? बोझा means burden. बोझा, बोझा means burden. बोझा means what, children? Burden. ढोता है. Now what is the meaning of ढोता है? Yes, he is carrying. ढोता है means what? He is carrying. गधा burden means donkey. गधा means what? First you know. गधा means donkey. Donkey is carrying the burden. Donkey is carrying the burden. Means गधा बोझा ढोता है. Understood the meaning of this line? गधा बोझा ढोता है means donkey is carrying the burden. ढोता है means what? Carrying. इस प्रकार अपनी अपनी जगह सभी पशु उपयोगी है. इस प्रकार means like this. इस प्रकार means what? Like this. अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी जगह means in their own places. अपनी अपनी जगह in their own places. सभी पशु उपयोगी है. सभी पशु उपयोगी है. All animals are useful. All animals are useful. See, हाथी सवारी के लिए उपयोगी है. ऊंट रेगिस्तान में उपयोगी है. कुत्ता रखवाली करने में उपयोगी है. गाय भैंस और बकरी दूध देती है. गाय भैंस और बकरी दूध देती है. गधा बोझा ढोता है. गधा बोझा ढोता है मीन्स इज कैरिंग द बर्डन. इस प्रकार अपनी अपनी जगह सभी पशु उपयोगी है मीन्स इन देयर ओन प्लेसेस. All animals are useful. Now, who is most useful? Who is more useful than other animals? Who is more near to God? Now, who will decide this? God will now decide. See the second para now. Okay? Understood first para full? Yes. Now, we will move to the second para. भगवान ने पशुओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया. भगवान ने पशुओं की परीक्षा. Pariksha means what, children? Exam. Pariksha means what? Exam. Test. Okay. पशु भगवान ने पशुओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया. Means God has decided to give to take the test of or exam of animals because he want to decide that which animal is more useful than others. Okay. एक गरीब आदमी का वेश धारण कर धरती पर धरती पर आए. एक गरीब आदमी का वेश धारण कर वे धरती पर आए. मीन्स व्हाट चिल्ड्रन सी हियर? एक गरीब आदमी का वेश धारण कर वे धरती पर आए. गरीब आदमी मीन्स व्हाट? poor person. Garib means what? Poor. Admi means person. Okay. गरीब आदमी means poor person का वेश धारण करके. वेश धारण करना means what? Means he took the he came in the form of. वेश धारण करना means he took the form of or in the form of. Okay. वे धरती पर आए. धरती means what? Earth. धरती means what? Earth. And वे means what? Who? God. Okay. What happened? No. God decided to take the exam of animals. That's why what he did, he took the form of poor person and he came on the earth. Who? God. God took the form of poor person and he came on the earth. एक गरीब आदमी का वेश धारण कर वे धरती पर आए. सबसे पहले वे सिंह के पास गए. सबसे पहले मीन्स फर्स्ट. सबसे पहले मीन्स व्हाट? फर्स्ट. वे सिंह के पास गए मीन्स हु? वे मीन्स हु? गॉड इन द फॉर्म ऑफ पुअर पर्सन. ही वेंट नियर टू हूम? ही वेंट नियर टू लायन. सिंह मीन्स व्हाट? लायन. वह किसके पास गए सबसे पहले? भगवान सबसे पहले सिंह के पास गए. सिंह मीन्स व्हाट? लायन. और बोले. क्या बोले? देखो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ.
भगवान कहते हैं सिंह के पास जाते हैं, गरीब आदमी का वेश धारण करते हैं, धरती पर आते हैं गरीब आदमी का वेश धारण करके, और सबसे पहले वे सिंह के पास जाते हैं। और सिंह के पास जाने के बाद वे सिंह से कहते हैं मैं बहुत दिनों से भूखा हूं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भूखा? भूखा मीन्स हंग्री। भूखा मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? हंग्री। सिंह से कहते हैं मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, आई एम हंग्री फ्रॉम सो मेनी डेज। मुझे कुछ भोजन दो, मुझे कुछ भोजन दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भोजन? भोजन, भोजन मीन्स फूड। भोजन मीन्स फूड। मुझे कुछ भोजन दो मीन्स मुझे कुछ खाना, भोजन दो मीन्स गिव मी सम फूड टू ईट। सिंह दहाड़ कर बोला। सिंह दहाड़ कर बोला। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दहाड़ना? दहाड़ना मीन्स टू रोर। ओके, दहाड़ना यह सब पशुओं की बोली है। दहाड़ना, बलबलाना, रंभाना, ये सब पशुओं की बोली है। अलग अलग पशुओं की अलग अलग बोली है। सो दहाड़ना किसकी बोली है? सिंह की बोली है। दहाड़ना मीन्स टू रोर। सिंह जब भगवान सिंह के पास जाते हैं और बोलते हैं मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, मुझे कुछ भोजन दो, उसके उत्तर में सिंह क्या कहता है देखिए। सिंह दहाड़ कर बोला मीन्स ही रोड एंड सेड टू गॉड, व्हाट ही सेड दैट, चल भाग जा यहां से, चल भाग जा यहां से। मेरा ही पेट ठीक से नहीं भरता है तो मैं तुझे क्या दूं? मेरा ही पेट ठीक से नहीं भरता है। और सिंह भगवान से कहता है चल भाग जा यहाँ से। ओके, यू गो, रन अवे फ्रॉम हियर। भाग जा यहाँ से, रन अवे फ्रॉम हियर। मेरा ही पेट ठीक से नहीं भरता है। आई एम ओनली नॉट फीलिंग माई स्टमक प्रॉपरली। पेट मीन्स व्हाट? स्टमक। पेट मीन्स व्हाट? स्टमक। ठीक से नहीं भरता है मीन्स आई एम नॉट फीलिंग माई स्टमक प्रॉपरली। आई कांट फील माई स्टमक प्रॉपरली। तो मैं तुझे क्या दूं? Then what shall I give to you? If I am not able to feel my stomach properly, then what shall I give to you? भगवान, सी भगवान सबसे पहले सिंह के पास जाते हैं और सिंह से कहते हैं मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, मुझे कुछ भोजन दो। तब सिंह दहाड़ कर बोलता है चल भाग जा यहाँ से, मेरा ही पेट ठीक से नहीं भरता है तो मैं तुझे क्या दूं? अब भगवान किसके पास जाते हैं? दूसरी बार भगवान किसके पास जाते हैं देखते हैं। भगवान हाथी के पास गए। अब भगवान किसके पास गए? हाथी के पास। हाथी मीन्स व्हाट? एलिफेंट। भगवान हाथी के पास गए और बोले एंड ही टोल्ड। भगवान बोलते हैं, भगवान कौन किसका रूप? भगवान का रूप धारण करके नहीं आते, भगवान किसी गरीब आदमी का रूप धारण करके आते हैं और जाते हैं हाथी के पास। पहले जाते हैं सिंह के पास, उसके बाद जाते हैं हाथी के पास। और हाथी के पास जाकर क्या बोलते हैं? हाथी भाई मैं बहुत भूखा हूँ। हाथी भाई मीन्स ब्रदर एलिफेंट, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। आई एम हंग्री फ्रॉम सो मेनी डेज। मुझे कुछ खाना दो, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना दो। गिव मी समथिंग फॉर ईटिंग। खाना मीन्स फूड। ओके, भोजन ओनली। मुझे कुछ खाना दो। हाथी जोर से चिंघाड़ते हुए बोला। जोर से मीन्स लाउडली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जोर से? यस चिल्ड्रन, जोर से। जोर से मीन्स लाउडली। ओके, जोर से मीन्स लाउडली। चिंघाड़ते हुए बोला। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिंघाड़ना? चिंघाड़ना जैसे दहाड़ना सिंह की बोली है ना, चिंगाड़ना हाथी की बोली है। चिंगाड़ना मीन्स स्क्रीम। ही स्क्रीम्ड एंड he told. What he told? See, चिंगाड़ना, scream, to scream. Okay.
चिंघाड़ना टू स्क्रीम। हाथी जोर से चिंगाड़ता हुआ बोलता है, भाग जा यहाँ से, मेरा ही पेट पूरा नहीं भरता तो मैं तुझे क्या दूं। वह भी हाथी भी सिंह की तरह ही बोलता है कि भाग जा यहाँ से, रन अवे फ्रॉम हियर, मेरा ही पेट पूरा नहीं भरता, आई एम नॉट फीलिंग माई स्टमक फुल्ली कंप्लीटली, तो मैं तुझे क्या दूं। देन व्हाट, तो मीन्स व्हाट, देन तो मैं तुझे क्या दूं। देन व्हाट शैल आई गिव टू यू, देन व्हाट शैल आई गिव टू यू। ओके, कौन बोलता है यह, हाथी बोलता है। कौन बोलता है, हाथी बोलता है। अंडरस्टूड। फर्स्ट ही वेंट टू lion, then afterwards he went near to elephant and both gave the same answer that भाग जा यहाँ से, मेरा ही पेट नहीं भरता तो मैं तुझे खाने के लिए क्या दूं। अब उसके बाद भगवान किसके पास जाते हैं, भगवान फिर ऊंट के पास गए। भगवान फिर ऊंट के पास गए। नाउ थर्ड टाइम ही वेंट नियर टू कैमल। किसके पास गए, ऊंट के पास गए और बोले, ऊंट भैया, और बोले, भगवान बोलते हैं, ऊंट भैया मुझे कुछ खाना दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा, मुझे कुछ खाना दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भगवान तुम्हारा भला करेगा मीन्स गॉड विल डू वेल फॉर यू। भगवान तुम्हारा भला करेगा, गॉड विल डू वेल फॉर गुड फॉर यू। भला मीन्स व्हाट, गुड, वेल। ओके, भला मीन्स गुड और वेल। भगवान ऊंट के पास जाते हैं और बोलते हैं, मुझे कुछ खाना दो, भगवान तुम्हारा, ऊंट भैया, कैमल ब्रदर, मुझे कुछ खाना दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अब उसके उत्तर में ऊंट क्या कहता है, ऊंट जोर से बलबलाया। ऊंट जोर से बलबलाया। बलबलाना मीन्स व्हाट, दिस इज द साउंड ऑफ कैमल। जैसे दहाड़ना सिंह की बोली है, चिंगाड़ना किसकी बोली है, हाथी की बोली है। वैसे बलबलाना, बलबलाया मीन्स वह ऊंट की बोली है। वह चिल्लाकर बोलता है, क्या बोलता है, और छींकता हुआ बोलता है। छींकता हुआ बोला, छींकना मीन्स टू स्नीज। ओके, छींकता हुआ मीन्स स्नीजिंग एंड टेलिंग। छींकना, छींकना, छींकना मीन्स टू स्नीज। ओके, टू स्नीज। छींकता हुआ बोलता है, वह जोर से बलबलाता है और छींकता हुआ बोलता है, कहाँ से आया रे, हम भी तो इधर उधर घूम फिर कर चरते हुए गुजारा करते हैं। कहाँ से आया रे, ऊंट कहता है, कहाँ से आया है तू, भगवान को कहता है। वे जानते नहीं है कि यह भगवान है, वो तो जानते हैं कि यह एक कोई गरीब आदमी है। हम भी तो इधर उधर घूम फिर कर मीन्स हम भी, वी आर, इधर उधर मीन्स हियर एंड देयर, घूम फिर कर मीन्स रोमिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, चरते हुए गुजारा करते हैं। चरते हुए, चरना मीन्स व्हाट, टू ग्रेज। चरना मीन्स व्हाट, टू ग्रेज, ग्रेजिंग। चरना, चरना, चरते हुए, चरना मीन्स टू ग्रेज मीन्स वह घास खाते हैं ना, उसे हम चरते हुए कहते हैं। वह चरते हुए गुजारा करते हैं। गुजारा करना मीन्स व्हाट, I'll tell you. See children, first complete this meanings now in your textbook. Okay? Then I'll give other meanings. Complete this first. खरगोश means rabbit. चंद्रमा moon. पशु animal. अभिमान tribe. उपयोगी useful. निकट near. निश्चित to decide. सवारी riding. रेगिस्तान डेजर्ट, रखवाली गार्डिंग, बोझा बर्डन, परीक्षा एग्जाम, भूखा हंग्री, भोजन फूड, दहाड़ना टू रोर, जोर से लाउडली, चिंगाड़ना टू स्क्रीम, भला गुड, छींकना टू स्नीज,
चरना टू ग्रेज. Okay, complete this. If you can't complete, pause the video here and complete this. Okay, children? Now, see here. चरते हुए गुजारा करते हैं. ऊंट कहता है कि हम चरते हुए गुजारा करना, गुजारा करते हैं. Now, what is the meaning of गुजारा करना? गुजारा करना means to live the life. Okay, to survive. ऊंट कहता है वह गरीब आदमी से कि हम भी तो इधर उधर घूम फिर कर अपना चलते हुए अपना गुजारा करते हैं. मीन्स हम ऊंट भी कैसे गुजारा करते हैं, यहाँ से वहां जाते हैं, घूमते हैं, चलते हुए खाते हैं, घास बीज जो भी मिलता है वह खाते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ गुजारा करना, अपना जीवन व्यतीत करना. गुजारा करते हैं मीन्स व्हाट? अपना जीवन व्यतीत करते हैं. वह कैसे व्यतीत करते हैं? यहाँ वहां घूमते हैं, देखते हैं कहाँ पे हमें चरने को मिलता है, वहां पर चरते हैं, घास खाते हैं. चरना मीन्स टू ग्रेज. ओके, और अपना जीवन पसार करते हैं, व्यतीत करते हैं, गुजारा करते हैं, ऐसे अपना जीवन गुजारते हैं. वहां क्या तू अपना गुजारा नहीं कर सकता? वह ऊंट उस गरीब आदमी से पूछता है. यू कांट लिव योर लाइफ बाय योरसेल्फ. तू अपना गुजारा खुद नहीं कर सकता? तू अपना गुजारा नहीं कर सकता? भाग जा. यू रन अवे फ्रॉम हियर. जैसे हम अपने गुजारा खुद करते हैं, तू अपना गुजारा नहीं कर सकता. तू अपना खाने के लिए कुछ ढूंढ कर खुद नहीं खा सकता. कौन कहता है? यह ऊंट कहता है. किससे कहता है? भगवान से कहता है. पर वे नहीं जानते थे यह गरीब आदमी भगवान है. भाग जा. अब उसके बाद भगवान किसके पास जाते हैं? क्योंकि ऊंट ने भी वैसे ही कहा कि भाग जा यहाँ से. भगवान फिर गाय के पास गए. भगवान फिर गाय के पास गए और बोले, गौ माता मुझे जरा सा दूध दे दो, बहुत भूखा हूं. गाय रंभाती हुई बोली. सी है, भगवान फिर गाय के पास जाते हैं, ऊंट के पास जाते हैं. उसके बाद वे गाय के पास जाते हैं. किसके पास जाते हैं? गाय के पास जाते हैं और बोलते हैं, गौ माता. गौ माता मीन्स व्हाट? यस, गौ माता मीन्स आल्सो काउ. ओके, गौ माता मुझे जरा सा दूध दे दो. गिव मी सम मिल्क. दूध मीन्स व्हाट? मिल्क. बहुत भूखा हूं, आई एम वेरी हंग्री. गाय रंभाती हुई बोली. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रंभाती हुई बोली? रंभाना किसकी बोली है? गाय की बोली है. रंभाना किसकी बोली है? गाय की बोली है. जैसे बलबलाना ऊंट की बोली है, रंभाना गाय की बोली है. रंभाती हुई बोली, अरे जा जा. यू गो फ्रॉम हियर. अरे जा जा, मेरे बछड़े को ही दूध नहीं मिलता, तुझे कहां से दूं? मेरे बछड़े को ही. बछड़ा मीन्स व्हाट? काउ. द बेबी ऑफ काउ. गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं. बछड़ा किसे कहते हैं? गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं. बछड़ा. बछड़ा मीन्स काफ. बेबी ऑफ काउ. मेरे बछड़े को ही दूध नहीं मिलता. माई बेबी इज ओनली नॉट गेटिंग द मिल्क. तुझे कहां से दूं? हाउ कैन आई गिव टू यू? फ्रॉम वेयर आई कैन गिव टू यू? भगवान सबके पास जाते हैं और कहते हैं मैं बहुत भूखा हूं. क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं. परीक्षा लेते हैं किसकी? पशुओं की. इसीलिए वह सब पशुओं के पास एक
कि एक पहले जाते हैं सिंह के पास, उसके बाद जाते हैं हाथी के पास, उसके बाद जाते हैं ऊंट के पास, और फिर गाय के पास आते हैं। गाय भी वैसे ही बोलती है, अरे जा जा, मेरे बछड़े को ही दूध नहीं मिलता, तुझे कहाँ से दूध। गाय के पास आकर भगवान कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, लेकिन वह गाय कहती है कि मेरे बछड़े को ही दूध नहीं मिलता, तो तुझे कहाँ से दूध। इस तरह भगवान एक एक करके लगभग सभी पशुओं के पास गए। इस तरह भगवान एक एक करके लगभग, लगभग मीन्स व्हाट, ऑलमोस्ट, लगभग मीन्स व्हाट, ऑलमोस्ट, लगभग सभी पशुओं के पास गए। मीन्स ही वेंट टू ऑलमोस्ट एवरी एनिमल, लाइक दिस ही वेंट टू एवरी एनिमल्स। किंतु, किंतु मीन्स व्हाट, बट उन्हें निराशा ही हाथ लगी, उन्हें निराशा ही हाथ लगी। निराशा मीन्स व्हाट, डिसअपॉइंटमेंट। निराशा मीन्स व्हाट, डिसअपॉइंटमेंट। हाथ लगी मीन्स ही गॉट डिसअपॉइंटमेंट एवरीवेयर, और he got disappointed everywhere. Okay? किंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगी। वह सबके पास एक एक करके सभी पशुओं के पास गए, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उसे भोजन देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। उसे भोजन देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। मीन्स he got disappointed because no one was ready to give him food. उसे भोजन देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तैयार मीन्स रेडी, तैयार मीन्स व्हाट, रेडी। नो वन वाज रेडी टू गिव हिम फूड, नो वन वाज रेडी टू गिव हिम फूड। सबने उसे खाली हाथ लौटा दिया, सबने उसे खाली हाथ लौटा दिया। खाली हाथ मीन्स व्हाट, एम्प्टी हैंड्स। लौटा दिया मीन्स व्हाट, रिटर्न। लौटा देना मीन्स व्हाट, रिटर्न। लौटा दिया मीन्स व्हाट, रिटर्न। लौटा दिया means return, means all know they didn't give anything to eat to that poor person, and everyone returned him with the empty hand. Everyone returned him with the empty hand. So this is what happened. Now next, God will go near to whom, that we will see in the next class. But you have to, half of the lesson I have completed. So what you have to do, you have to read full lesson by keeping your finger there. Okay, understood children? You have to keep your finger and read the lesson and understand the lesson properly by this all meanings. Okay, this means what, guzara karna means to survive. Bachra means calf. Okay, lagbhag means what, almost. Nirasha, disappointment. Lauta diya, return. Last two lines and once again I'll read, see here. इस तरह भगवान एक एक करके लगभग सभी पशुओं के पास गए, किंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगी। मीन्स ही गॉट डिसअपॉइंटमेंट। हाथ लग, निराशा हाथ लगना मीन्स व्हाट, ही गॉट डिसअपॉइंटेड। ओके, डिसअपॉइंटमेंट। उसे भोजन देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। नो वन वॉज रेडी टू गिव हिम फूड। सबने उसे खाली हाथ लौटा दिया, सबने उसे खाली हाथ लौटा दिया। मीन्स ऑल no, they didn't give anything and they returned him with the empty hand. Khali hath means what? Khali means what? Empty. If you don't know, write there khali. Khali means what? Empty. Khali means what? Empty. And hand means what? Hath means what? Hand. Everyone returned that poor person with the empty hand. Okay, so children, you have to read this half of the lesson, and another half of this lesson I'll teach in the next class. Okay, so this is a very interesting story. What will happen, now किसके पास भगवान जाते हैं और क्या होता है वहां जाकर, वह हम अगली कक्षा में देखेंगे. Okay children, thank you.